Hello everyone. Today we are going to talk about budgetary deficit. What are the various concepts of budgetary deficit we are going to see today. So before there are various concepts like revenue deficit, budgetary deficit, revenue deficit, budgetary deficit, fiscal deficit, primary deficit, and effective revenue deficit. These are the various concepts of deficit. Before moving to this section, we have to know what is the meaning of budget, how budget is classified. So, first of all, we are going to talk about budget. Budget means, as your father make budget for your family, it contains the estimates of revenue and expenditure for a particular time period. Similarly, government also prepare their budget. So, budget is a financial document in which a revenue and expenditure estimates are contained for this year, previous year and upcoming year. So, budget is nothing but it is estimates of detailed estimates of revenue and expenditure of government for this financial year, previous financial year and upcoming financial year. So, this budget is classified into two parts. One is revenue budget, revenue budget. Other one is capital budget. Revenue budget deals with revenue aspect of the government and capital budget deals with the capital aspect of the government. So, revenue budget is again classified into two parts. Revenue receipts and revenue expenditure. Here it is also classified into two parts. Capital receipts and capital expenditure. We will not go in detail, but briefly we will try to understand what is the meaning of all these concepts. Expenditure, it will be expenditure here. So, as per concern of revenue receipt, it deals with those type of receipts which neither create any liability nor reduces in capital asset. So, if we talk about which types of revenue is coming under the revenue receipt, here you have to mention those receipts which neither create any liability to the government nor loses any capital asset of the government. So, the features of this type of receipts are
neither create liability nor reduces asset. I'm further going to write the features of revenue receipt. Features. What are the features? Neither create liability nor reduces asset. So similarly, one by one we will deal with. First of all, we are talking about revenue receipt. The features of revenue receipts are: these type of receipt neither create any liability to the government nor reduces asset of the government. So what are the items which comes under this head are following. One is tax revenue. This revenue receipt is broadly classified into two parts: tax revenue and non-tax revenue. Okay, now I would like to draw this type of table. In under this we will write everything: tax revenue and non-tax revenue. Now, what are the tax revenue? The tax revenue are: one is direct tax and other one is indirect tax. Indirect taxes. What about non-tax revenue? The receipt under revenue other than taxes are mentioned as non-tax revenue. For example, interest, receipts, profit and dividends, and profit, fee, fine and penalties, gift and grants are come under this category. So this is the revenue receipt of the government. Broadly, revenue receipt have two items. One is tax revenue, other one is non-tax revenue. Under tax revenue, we have two types of taxes. One is direct taxes like income tax, other one is indirect taxes like GST. Non-tax revenue, under revenue account, items other than taxes comes under non-tax revenue. What are those items? Interest receipts, dividends and profit, fees, fine and penalties. After that, gifts and grant. These types of receipts neither create any liability to the government nor reduces a asset of the government. Okay. Now we will talk about revenue expenditure. First, you have to know what are the features of it. Features are characteristics of the revenue expenditure. This type of expenditure
neither reduces liability liabilities nor creates assets. These types of receipts neither create any liability neither reduces any liability nor creates any asset to the government or comes under this category. Now what are the items? For example, interest, payment, oh sorry, so interest, payments, civil administration, expenditure on defense, subsidies, on food, fertilizer, and export, social services, education and health. So these are the items which comes under revenue expenditure of the government. Now we are going to talk about what is the meaning of capital receipts. First, uh, let me revise what I have taught you. We are talking about budget. Budget is nothing but revenue and expenditure estimate of the government for current year, previous year and upcoming year. This budget is classified into two parts, revenue budget and capital budget. Revenue budget deals with the revenue aspect of the government. Capital budget deals with the capital aspect of the government. This revenue budget is classified into two parts, revenue receipts and revenue expenditure. So what is the meaning of revenue receipt? Those receipts which neither create liability to the government nor reduces any capital asset or any asset of the government. If government is receiving such type of receipt, then it will come under the revenue receipt. So what are the examples of this? This revenue receipt is broadly classified into two parts, tax revenue and non-tax revenue. Various types of taxes imposed by the government are come under this category. You can classify taxes basically in two parts, direct taxes and indirect taxes. Direct examples of direct taxes are
इनकम टैक्स, taxes on agricultural income, corporation tax. These are the direct taxes. Indirect taxes, for example, excise duty, GST, which comes under this category. This is after the second component of revenue receipt is non-tax revenue. Receipt other than taxes in a revenue account is considered as non-tax revenue. The examples are interest receipts. गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन पर गवर्नमेंट ने किसी और स्टेट को या किसी और कंट्री को अगर लोन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इस नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट रिसीट्स। आफ्टर दैट डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट मीन्स government operates some enterprises like Coal India, NTPC. The profit of these enterprises are come under here. After that, fees like any central university. In any central university, student submit their fees, so that fees will come under here. Under this category. Fine and penalties are also comes under this category, and somebody give to the government or grants to the government also come under this this category. For example, IMF giving grant to India for the purpose of improving the sanitation in India. So this will come under this section. After that, we have talked about revenue expenditure. The features of revenue expenditures are it neither reduces liabilities nor create assets. For example, interest payment. अगर गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री से इंटरेस्ट लिया हो, लोन लिया हो, तो उस जब लोन लेते हैं हम किसी और कंट्री से, तो हमें उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और बाद में जो आपने लोन लिया हुआ है उसे भी पे करना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अदर गवर्नमेंट को, या जहां से उसने टैक्स लिया होगा, तो वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट के अंतर्गत जाएगा और वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट जो भी देश के अपने सिविलियंस के ऊपर जो भी पैसा खर्च कर रही है, वो पैसा इधर आएगा। जैसे रोड बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, तो वो रोड ब्रिज नहीं, सिविल के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, नॉर्मल खर्चे, जैसे उसने कोई गवर्नमेंट ऑफिस खुला हुआ है, उनकी सैलरीज दी जा रही है, तो वो सब इसमें आएगा आपका। फिर डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। सब्सिडीज ऑन फूड, फर्टिलाइजर एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट सब्सिडी जो दे रही है फूड पे, फर्टिलाइजर पे, एक्सपोर्ट पे, वो भी यहाँ पे आएगी। फिर इसके बाद सोशल सर्विसेज पे जो भी खर्च हो रहे हैं इस कैटेगरी में आएगा। एजुकेशन और हेल्थ पे जो खर्चे आ रहे हैं वो भी। तो आप अगर इन एक्सपेंडिचर को देखेंगे, सभी एक्सपेंडिचर को, तो इनमें दो क्वालिटी आपको मिलेगी। ये लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइबिलिटी का मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आई शुड नॉट राइट हियर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने यूएस गवर्नमेंट से क्या लिया है, लोन लिया है, पैसा उधार लिया है। तो
ये क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी है, ये लोन एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और एक्सपेंडिचर कैसा हो, वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस ना कर रहा हो, ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट जनरेट कर रहा हो, उस टाइप का एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। दो क्वालिटीज, लाइबिलिटीज, कोई लोन, ये भी जो भी आइटम्स आपने यहाँ पे देखा, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, नॉर क्रिएट्स एसेट, ये एसेट भी कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल बनाया होता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया होता, रोड बनाया होता, ब्रिज बनाया होता, तो वो गवर्नमेंट का एसेट होता, गवर्नमेंट का एक एसेट होता। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इस टाइप के एक्सपेंडिचर नहीं आते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर रहेंगे जो डे टू डे होंगे, रिकरिंग एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे आपके पिता ने आपको पैसा दिया, आप उस पैसे को गए पार्टी कर लिया आपने, या फिर आपने डेली का आप रेंट दे रहे हो जहां रहते हो, आपका एक्सपेंडिचर जो फूड पे आ रहा है, क्लॉथिंग पे आ रहा है, आप वेरियस टाइप के सोप्स, शैम्पू, ये सारी चीजें खरीद रहे हो, तो ये जो एक्सपेंडिचर आपका है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये ना तो आपकी लाइबिलिटी को कम करेगा, लाइबिलिटी मतलब अगर आपने किसी से उधार लिया होता, आपके पिता ने पैसा दिया, आप उस पैसे से अपना उधार अगर खत्म कर दिए होते तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती। लेकिन आप लाइबिलिटी भी नहीं रिड्यूस कर रहे हो, आप डेली के कंजम्पशन वाली चीजें में लगे हुए हैं। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर आपके क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने अपने पैसे से कोई लैपटॉप खरीद लिया होता, कोई मोबाइल खरीद लिया होता, कोई बुक खरीद ली होती, तो ये क्या होता, आपका एसेट होता। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर न तो लाइबिलिटी क्रिएट रिड्यूस करता है, न तो कोई एसेट क्रिएट करता है। आप जितना भी ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा इन्हीं दोनों पे काम करता है। फिर अगला है हमारा कैपिटल बजट। कैपिटल बजट, इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट में क्या क्या आएगा आपका, इसका भी फीचर होगा। इसका फीचर इस रेवेन्यू रिसीट वाले के फीचर से ठीक उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे था नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ये ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, नॉर रिड्यूसेस एसेट। तो ये जो कैपिटल रिसीट है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ठीक इसके अगेंस्ट में है। तो क्या फीचर है इसका, देखा जाए, इसके भी दो फीचर। इसका फीचर है आपका आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी, ईदर creates a liability or reduces an assets। तो वे सारे एक्सपेंडिचर जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हो या फिर गवर्नमेंट का एसेट में रिडक्शन लाते हो। जैसे गवर्नमेंट को जो इनकम आया, बजट में हम क्या कर रहे हैं, हमने बजट के अंतर्गत दो चीजें रखा हुआ है, एक क्या रखा है, रेवेन्यू रखा हुआ है, दूसरा एक्सपेंडिचर रखा हुआ है। अगर आपका रिसीट ऐसा है जो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया हो, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी हो, तो जब लोन लेके गवर्नमेंट पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा तो वो क्या आएगा, कैपिटल रिसीट के अंतर्गत आएगा। दूसरा, या तो गवर्नमेंट ने अपना कोई PSU, पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग को सेल कर दिया हो। जैसे आप अभी सुन रहे हो कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अपना स्टेक प्राइवेट प्लेयर को सेल करने की कोशिश कर रही है। जितने भी एयरपोर्ट थे जिसको पहले गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी, वो एयरपोर्ट भी गवर्नमेंट अब सेल कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो सेल करने पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एसेट किसी और को सेल कर दिया। तो जब सेल करेगा तो क्या होगा, उसका एसेट रिड्यूस हो जाएगा। एसेट रिड्यूस होने पे जो रिसीट आएगा वो कैपिटल रिसीट के अंतर्गत आएगा। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। रिकवरीज फ्रॉम लोन, रिकवरीज फ्रॉम लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी और गवर्नमेंट जैसे बांग्लादेश को क्या किया था, लोन दिया हो। जब बांग्लादेश वो लोन वापस कर देगा इंडिया को, तो क्या आएगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई। सॉरी, एक एसेट था, गवर्नमेंट ने अगर बांग्लादेश को पैसा उधार दिया है, लोन दिया है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक एसेट था। जब बांग्लादेश ने उसे वापस कर दिया तो क्या हो गया, रिकवरीज फ्रॉम लोन, वो लोन से रिकवरी हो गई और वो आपका एसेट रिड्यूस कर रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। दूसरा हो गया आपका बारोइंग्स, गवर्नमेंट ने बारो किया हुआ है। जो बारोइंग होगी वो दो सोर्सेस से हो सकती है, एक इंटरनल सोर्सेस और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेस। और ओपन मार्केट, आरबीआई, इन जगहों से गवर्नमेंट बारो कर सकती है। फिर इसके बाद आता है अदर बारोइंग्स। इस बारोइंग में आप सिंपली दो तीन चीजें लिख सकते हो। ओपन मार्केट, गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट मतलब मार्केट से लोन लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया हुआ है। फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है। आईएमएफ से लोन लिया हो या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हो। ये जो लोन आएंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। लोन क्या करता है, बारोइंग क्या करती है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती है। अदर बारोइंग्स में आपका क्या क्या आ रहा है, स्मॉल सेविंग, जितनी भी स्मॉल सेविंग है जो पब्लिक अकाउंट में जाती है वो इधर आएगी। फिर इसके बाद एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आएगा इधर आपका। किसान विकास पत्र आएगा इधर। प्रोविडेंट फंड वाला इधर आएगा। फिर इसके बाद तीसरा जो आइटम्स है वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ अपना एसेट बेच दिया हो। एक होता है इन्वेस्टमेंट और इसका एक उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे इस समय इंडियन गवर्नमेंट अपनी काफी चीजें सेल कर रही है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अब एक अगला देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये ठीक उल्टा होगा आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका, फीचर्स, आइदर क्रिएट इन एसेट, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, नाइदर रिड्यूसेस लाइबिलिटी नॉर क्रिएटेड एसेट। तो ये क्या कहता है, ठीक इसका उल्टा, आइदर क्रिएट एन असेट
or reduces a liability. Reduces a liability. जैसे इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, गवर्नमेंट ने क्या दिया हो, लोन दिया हो किसी को, लोन टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, expenditure on building, expenditure on building roads, flyovers, factories, purchase of machinery, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। तो ये सारा आइटम आपका क्या आ रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है। तो इसके बाद का हम बाद में देखेंगे।